Every person wants to speak English, but he doesn't know how to use structures in English. Before we discuss how to speak English with the vocabulary, first of all, we will discuss what is a sentence, what is a clause, and their parts. So, first of all, my dear, we are going to start our topic, what is a sentence. I am Sanjeev Kumar. I am teaching here English for the last 15 to 17 years. So first of all, we will discuss here first point, that is sentence. Okay. Sanjeev Kadian presents one step for life. It means, my dear, if you want to continue your progress on the path of success, you have to speak English, you have to use English, you have to apply English in your life. But if you don't know what you have to apply, so you may contact me 8950460457. I will definitely help you in the path of success. So, my dear friends, first of all, we will discuss what is a sentence. My dear, that is the most important part of your grammar that will help you speak and modify sentences in your life. First of all, you can see here English mantra. यस माय डियर, ये आपको जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये इंग्लिश मंत्र है, इंग्लिश का मंत्रा रहेगा। इसके बाद अगर आप इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो यू मे कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। चलिए माय डियर स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अ सेंटेंस? सेंटेंस माय डियर, डेफिनेशन देखिएगा। तो a set of words expressing our statement, a question, you may see here my dear, a set of words expressing statement, कुछ वर्ड्स हैं जो आपकी स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करते हैं या फिर किसी ऑर्डर को शो करते हैं जिसके अंदर इंक्लूड होता है सब्जेक्ट एंड वर्ब। यानी एक सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का होना मैंडेटरी है, दैट इज सेंटेंस। एंड दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द कैपिटल लेटर्स and end with a full stop. Okay, and suppose you can see here example, let's see here. Yes, you can see here example, I was too stunned to finish my sentence. माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं ये कहूँ कि ये एक सेंटेंस है तो आपको कैसे आइडिया मिलेगा एक सेंटेंस है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक गिवन है अ पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, इट मीन्स यहाँ पर जो मेंशन किया गया है ये आपका एक सब्जेक्ट भी हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। क्लियर? आफ्टर दैट यू कैन सी हियर वर्ब। क्लियर? सो आई वॉज टू स्टर्न टू फिनिश माई सेंटेंस, मैं इतना हैरान हो गया, इतना स्तब्ध हो गया कि मैं अपने सेंटेंस को पूरा नहीं कर सका। यानी कि जिस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और वर्ब होता है उसे आप सेंटेंस बोलते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। सो वी कैन से हियर a set of words expressing a statement, a question or an order is usually containing a subject and verb, that is a sentence. So we will continue the second part of this subject and verb predicate. चलिए, subject means the subject, sorry, the subject of a sentence includes the noun performing the action. My dear, you will see here, just a minute. Yes, you can see here the subject of a sentence includes the noun performing the action. यानी एक सेंटेंस का एक सब्जेक्ट जिसमें नाउन इंक्लूड होता है और एक एक्शन परफॉर्म करता है, एक एक्शन को करने वाला डूअर होता है, अलोंग विद
ऑल ऑफ इट्स मॉडिफायर्स, अपने मॉडिफायर के साथ। मॉडिफायर किसको कहेंगे? जिसको आप एक एडजेक्टिव वर्ड कह सकते हो। सो यू कैन सी हियर, देखिएगा यहाँ पर दिया गया द बिग ब्लैक कैट। तो यहाँ पर मेंशन माय डियर फ्रेंड्स देर इज अ वर्ड नाउन कैट, कैट इज अ नाउन no doubt, and with this there is a word black. Black is adjective word that is used here for a cat. It means black modifies a cat. I hope you can understand this. And with this there are two words, the big. So the आर्टिकल है और बिग एडजेक्टिव है, both words are used for cat. So my dear friends, can I say there are only one word that is a noun and the other words are used for cat, are used for nouns. So other words means modifiers, means modifiers. आप उसे क्या बोलने वाले हैं? मॉडिफायर्स। तो आप अगर ये कहें कि किसी सेंटेंस में आपको फाइंड आउट करना है सब्जेक्ट, सो कोई भी नाउन इंक्लूडिंग मॉडिफायर्स इज कॉल्ड सब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? ओनली नाउन को सब्जेक्ट कंसिडर नहीं किया जाएगा, उसके साथ जो भी मॉडिफायर गिवन है। और मॉडिफायर किसे कहा गया है? एडजेक्टिव वर्ड्स को, लाइक दिस। जस्ट अ मिनट। Yes, after that, the two most basic parts of a sentence are subject and predicate. तो माय डियर, किसी सेंटेंस के अंदर टू पार्ट्स इंक्लूड होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। और मैंने आपको बताया सब्जेक्ट मीन्स नाउन अलोंग विद इट्स मॉडिफायर्स, यानी सब्जेक्ट के साथ नाउन के साथ जो एडजेक्टिव्स आर्टिकल्स गिवन हैं ये सब सब्जेक्ट में इंक्लूड होते हैं। और प्रेडिकेट क्या होगा? तो प्रेडिकेट के अंदर माय डियर वर्ब होगी और वर्ब के साथ जो भी उसके मॉडिफायर्स गिवन होंगे। फॉर एग्जांपल यू कैन सी इन द सेंटेंस, लेट्स सी, यस, predicate. The predicate of the sentence includes action or being verb, right? मैंने भी आपको बताया वर्ब प्रेडिकेट में इंक्लूड होता है वर्ब, या उसको कहा जा सकता है एक्शन। और इसके साथ और भी कुछ पॉइंट्स है, अलोंग विथ इट्स मॉडिफायर्स। यस, जैसे नाउन के साथ मॉडिफायर्स आपका सब्जेक्ट इंक्लूड करता है, वैसे ही आपका प्रेडिकेट के अंदर वर्ब गिवन होता है, तो वर्ब इज प्रेडिकेट। एंड नॉट ओनली वर्ब, with all its modifiers are called predicate. I hope clear. See, one point here is runs. Run is verb and verb is predicate. But you can see here with verb is given quickly. So quickly means adverbs. वर्ब, और वर्ब के लिए यूज किया गया एडवर्ब क्विकली। सो क्विकली क्या हुआ आपका? एडवर्ब्स। तो क्विकली को, एडवर्ब्स को आप कह सकते हैं मॉडिफायर्स, राइट? देखिएगा, जस्ट ए मिनट, यस। तो आप पूरे सेंटेंस में देखिए माय डियर, यहाँ पर गिवन है द बिग ब्लैक कैट, ये आपका सब्जेक्ट है, राइट? रन्स क्विकली, ये आपका प्रेडिकेट है। तो गिवन सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट विद ऑल इट्स मॉडिफायर्स इज कॉल्ड सब्जेक्ट।
and predicate includes verb, action and all its modifiers like quickly. Is that clear? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट गिवन दिया गया है द सिंपल प्रेडिकेट इज जस्ट द एक्शन वर्ब। यह सिंपल, while the complete predicate is all the words is in the predicate clause or phrase. The simple rule can be applied to the subject. क्या गिवन दिया है यहाँ पर माय डियर? यहाँ पर 2 पॉइंट मेंशन किए गए हैं, फर्स्ट और सेकंड। सिंपल प्रेडिकेट मीन्स वर्ब और सेकंड मीन्स वर्ब प्लस मॉडिफायर्स। क्लियर? यानी कि आप दो प्रेडिकेट के 2 पार्ट्स कर सकते हैं, एक आपका पार्ट है सिंपल प्रेडिकेट और एक दूसरा आपका कंप्लीट प्रेडिकेट। तो कंप्लीट प्रेडिकेट का मीन्स होता है वर्ब विद ऑल इट्स मॉडिफायर्स। नेक्स्ट, तो आई होप माय डियर फ्रेंड्स you have understand what is a sentence and what's the definition of sentence or how can you pick out subject or predicate. And with this I have tried to teach you what is a modifier. If you can see modifiers with the subject with the noun, it means the whole words, all the words are called subject. And if you can see verb, that is predicate, you can say it simple predicate. And if you can see verb with all its modifiers, it means the complete predicate. थर्ड मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस देखिए माय डियर, यहां पर गिवन है माय डियर, just a minute, yes, third main part, not strictly required but giving depth and detail is an object. तो 2 ही पार्ट डिस्कस किए गए हैं, एक पार्ट है सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट है प्रेडिकेट। लेकिन इसने कहा द थर्ड मेन पार्ट, इट मीन्स दैट इज ऑब्जेक्ट। अब हम डिस्कस करें व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। So what is object my dear? See here, object where does it belong? कि कोई चीज है वो जिसे बिलोंग करती है। Like the object of sentence is a modifier. The object of a sentence is a modifier. Yes, किसी सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? वो मॉडिफायर है and is found within the complete predicate. और ये कहाँ मिलता है? आपके प्रेडिकेट के अंदर मिलता है। यानी कि अगर प्रेडिकेट के अंदर हम 2 पार्ट्स डिस्कस करें तो एक प्रेडिकेट के अंदर एक वर्ब होती है और दूसरा मॉडिफायर, राइट? चलिए विद द हेल्प ऑफ द नेक्स्ट एग्जांपल सी व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। अभी हमने कंप्लीट किया था सब्जेक्ट। सी यहां पर दिया गया है द सब्जेक्ट इज, जस्ट अ मिनट, सॉरी, the subject is the noun completing action or state of being along with my modifiers, right? सब्जेक्ट मॉडिफायर के साथ होता है, नाउन जो मॉडिफायर के साथ होगा उसे सब्जेक्ट कंसिडर किया जाएगा। एंड आफ्टर दैट मॉडिफायर, सी मॉडिफायर इज अनदर पार्ट ऑफ स्पीच लाइक एन एडजेक्टिव और एडवर्ब दैट एनहेंसेस द नाउन एंड टू गिव इट मोर डिटेल। जो मॉडिफायर किसी नाउन को एनहेंस करता है, उसके बारे में डिटेल देता है और जानकारी देता है। लाइक संजीव कादिया, ये एक नाम है, एक नाउन है। अगर आप संजीव के बारे में कुछ एक्सप्लेन करते हैं तो इट मीन्स जो वर्ड्स संजीव को एक्सप्लेन करते हैं उसे कहा जाएगा मॉडिफायर, एंड दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। द सेम रूल, द मोस्ट, अगर आप देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर रहेगा, द सेम इज ट्रू ऑफ द कंप्लीट प्रेडिकेट। और यही कंडीशन आपकी प्रेडिकेट के अंदर है कि कंप्लीट प्रेडिकेट के अंदर आपका वर्ब होगा और वर्ब के साथ आपका मॉडिफायर गिवन होगा।
सेम आगे देखिए कंप्लीट सब्जेक्ट, और कंप्लीट सब्जेक्ट भी उसे ही कहा जाएगा जिसमें आपका मॉडिफायर गिवन है, राइट। चलिए एक बार फिर इसको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। द कंप्लीट सब्जेक्ट इज ऑल द वर्ड्स इन द सब्जेक्ट फ्रेज वाइल द सिंपल सब्जेक्ट इज जस्ट द नाउन। अभी मैंने बताया आपको कि सिंपल नाउन, संजीव एक नाउन है, एक सिंपल नाउन है, इट मीन्स एक सब्जेक्ट है। अगर मैं कहूँ कंप्लीट सब्जेक्ट तो इट मीन्स विद कंप्लीट सब्जेक्ट यू हैव टू फाइंड आउट द नाउन विद ऑल इट्स मॉडिफायर्स विद एन एडजेक्टिव पार्ट, राइट। इफ आई से some brown girls, some brown haired girls, some brown fur cats. So cat means cat is noun, and all words are used before the word noun are called modifiers. चलिए नेक्स्ट देखिएगा माय डियर, इजीली आप समझ सकते हो, कंप्लीट डेफिनेशन यहाँ पर गिवन है। और फिर भी अगर आपको लगता है कोई डाउट आपके सामने आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो यू मे कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। जस्ट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, यू हैव टू फोकस ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। डोंट थिंक you are not going to English medium school. A majority of the students are going English medium schools. So after that, they are not able to speak English, my dear. So you have to consider this point, and you have to apply one point, that is you have to use English, you have to apply English, you have to apply sentences in your life, and after that 1 or 2 months you will see the result before you. Okay, next point, with the help of examples we will try to understand the concept. चलिए my dear देखिएगा, सॉरी यहाँ पर in the first sentence a quiet and beautiful day, तो माय डियर यहाँ पर जो मेंशन किया गया है वो डे दिया गया है, राइट। डे आपका यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पार्ट पर दिया गया है, और डे के साथ मेंशन यहाँ पर देखिए क्वाइट ब्यूटीफुल, यहाँ पर 2 एडजेक्टिव वर्ड्स हैं। तो इसे आप क्या कहने वाले हैं, ये आपके दिए गए हैं माय डियर, ये आपकी मॉडिफायर्स हैं, राइट। क्या आप इसे मॉडिफायर कह सकते हो? यस सर। सो ये कंप्लीट सब्जेक्ट है, राइट। कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि ये आपका कंप्लीट सब्जेक्ट है। कंप्लीट मीन्स जिसमें डे के साथ क्वाइट क्वाइट ब्यूटीफुल मेंशन है। आफ्टर दैट यहां पर देखिए वॉज से लेकर वॉज सैटर्ड बाय द रोल ऑफ थंडर, ये कंप्लीट प्रेडिकेट है। अब आप कैसे कह सकते हैं कि सर ये कंप्लीट प्रेडिकेट है, राइट। तो यहाँ पर देखिए ये एक्शन दिया गया है, इस एक्शन के साथ ये जो आगे मेंशन किया गया है ये आपका सारा प्रेडिकेट है, सारा आपका मॉडिफायर्स है। ये भी क्लियर हो गया। इसके साथ मैं आपको एक पॉइंट और बता देता हूँ कि जो डे वर्ड मेंशन है यहाँ पर, डे है ये नाउन है नो डाउट, थंडर है ये भी नाउन है नो डाउट, लेकिन ऑब्जेक्ट पार्ट पर जो डे है जो सेटेड किया गया है वो कौन है? वो डे है। तो डे आपका यहाँ पर सब्जेक्ट के प्लेस पर है, लेकिन है ये ऑब्जेक्ट। मैं एक बार फिर से मेंशन कर देता हूँ, ओके। ये डे जो यहाँ पर मेंशन किया गया है ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसको शैटर किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? बाय द रोल ऑफ थंडर। इट मीन्स ये आपका सब्जेक्ट है, कंप्लीट सब्जेक्ट है, इजी। आफ्टर दैट नेक्स्ट देखिएगा अनदर लार्ज शाइनी फिश, तो फिश जो वर्ड है वो आपका नाउन है नो डाउट, और फिश के साथ साथ दिया गया अनदर, ये आपका एडजेक्टिव है, लार्ज आपका एडजेक्टिव है, शाइनी आपका एडजेक्टिव है। सो 3 words are used to modify fish, and with all these modifiers you can say fish is a complete subject. And 1 minute समझते हैं इस पॉइंट को। आफ्टर दैट देखिए मैनेज दिया गया, मैनेज है ना, तो मैनेज इज वर्ब। वर्ब मीन्स वर्ब किस में इंक्लूड होती है? प्रेडिकेट के अंदर, राइट। और इसके बाद अगर आप समझें टू एस्केप माई फिश बुक, फिश हुक है ना, जस्ट मिनट,
मैनेज से लेकर और आपके एस्केप माई फिश हुक, ये कंप्लीट प्रेडिकेट है. In the third sentence, you will see leaves. Leaves here subject. और लीव्स कैसी हैं, वो क्वाइट भी हैं और रसलिंग भी हैं, यानी जो पत्तियां हैं वो शांत भी हैं और रसलिंग भी हैं, साउंड भी क्रिएट कर रही हैं. तो ये दीज वर्ड्स आर यूज टू मॉडिफाई लीव्स, राइट. These two words are used to modify leaves. So we can say this part is called subject. And after that, fell means verb. Verb means action. So we can say after fell to silence, right. Fell to silence, fell से लेकर और इन साइलेंस तक आपका सारा प्रेडिकेट है. क्लियर हो चुका है, राइट. चलिए नेक्स्ट पॉइंट, फिर से कुछ एग्जांपल्स, कुछ न्यू डेफिनेशन देखते हैं. नेक्स्ट देखिएगा. इंग्लिश गुरु कहता है द वाइज डज एट वंस, जो बुद्धिमान होते हैं वो तुरंत काम करते हैं. व्हाट द फूल डज एट लास्ट, जो मूर्ख होता है वो लास्ट में काम करता है, अंत में काम करता है. कोई भी एक्शन आप देखेंगे, कोई भी पॉलिसी जब आती है, बुद्धिमान तुरंत डिसीजन लेता है और उसमें सफल होता है, और उस सफलता को देखकर दूसरे मूर्ख लोग फॉलो करते हैं, लेकिन तब तक उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है. तो फूल हमेशा लास्ट में डिसीजन लेते हैं और वाइज हमेशा स्टार्टिंग में डिसीजन लेते हैं. चलिए नेक्स्ट कंटेंट्स देखते हैं क्या कहता है. आपके सब्जेक्ट प्रेडिकेट के कंसेप्ट को समझाने में कहाँ तक आपकी हेल्प करता है. तो देर आर टाइम्स व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज रियली अ वर्ब. देर आर टाइम्स व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस इज रियली अ वर्ब. किसी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो एक वाक्य में किसी वर्ब, इज रियली अ वर्ब दैट इज एक्टिंग लाइक अ नाउन. वो जो सब्जेक्ट होता है वो कुछ ऐसा काम करता है एक नाउन के रूप में. व्हेन दिस हैपन्स, जब ऐसा होता है, इट इज कॉल्ड अ जेरंड. तो उसको आप जेरंड भी कह सकते हैं. यानी कि क्या कहना चाहता है, जस्ट मिनट, आई विल टीच यू, आई विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट विद द हेल्प ऑफ अ सेंटेंस. यस, I hope you have seen many times in the bus smoking, right. Smoke is verb. लास्ट में अगर मैं ए का यूज करता हूं तो स्मोक, और स्मोक में मैंने यूज कर दिया आईएनजी. तो वर्ब के अंदर जब आप आईएनजी का यूज करते हैं तो दैट इज एक्टिंग लाइक अ नाउन. व्हेन दिस हैपन्स इट इज कॉल्ड अ जेरेंट. तो जब कभी भी कोई वर्ब होते है, उस वर्ब के अंदर नाउन गिवन होता है, तो उसे जेरेंट कहा जाएगा और वो एक्टिंग करेगा, वो काम करेगा एज ए नाउन. बस इतना ही इसमें मेंशन किया गया है. चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. तो ये सारे पॉइंट्स आपके आगे इसके बाद मेंशन किए जाएंगे. एक बार थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को समझते हैं. यहाँ पर दिया गया ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग. ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट कैन बी एडेड टू द प्रेडिकेट. हाँ, किसी प्रेडिकेट के अंदर जो ऐड होता है वो प्रेडिकेट के अंदर क्या मिलेगा आपको? ऑब्जेक्ट मिलेगा. क्यों भाई? क्योंकि टू गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रेडिकेट. प्रेडिकेट के बारे में ज़्यादा जानकर जो दी जाएगी वो कौन देगा? ऑब्जेक्ट देगा. सपोज करो आई टीच यू, तो आई सब्जेक्ट है और टीच आपका वर्ब है, और वर्ब से लेकर यू तक आपका प्रेडिकेट है, राइट. आई टीच यू, मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पर ना, आई टीच, सी एच, टीच यू. तो टीच से लेकर यू तक आपका प्रेडिकेट है, लेकिन आप टीच किसको करते हैं? यू को. तो यू क्या कह रहा है? ये आपका ऑब्जेक्ट है. ये कह रहा है कि मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपके और किसी चीज, किसी एक्शन के बारे में, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, तो आप उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं. लाइक विद द हेल्प द प्रेपोजिशन फ्रेज. सी, प्रेपोजिशन फ्रेज टू द एली. यस, आप एग्जाम्पल में देखिएगा, जैसे लास्ट एग्जाम्पल आपने देखा था कि कोई कैट थी वो रन करती है क्विकली, राइट. ये उसमें मेंशन था, दौड़ती है. तो क्विकली आपका एडवर्ब्स था, राइट.
लेकिन अब वो कहाँ दौड़ती है, तो उसने लिखा है यहाँ पर सेंटेंस में टू द एली। एली मीन्स गली, गली में दौड़ती है। तो एली क्या है, वो आपको एक न्यू इन्फॉर्मेशन दे रही है आपके प्रेडिकेट के बारे में। तो जो वर्ड प्रेडिकेट को ज़्यादा जानकारी दे, प्रेडिकेट के बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन करे, उसे आप कहेंगे ऑब्जेक्ट। इन द डेफिनेशन यू कैन सी इट क्लियरली माय डियर फ्रेंड्स। जस्ट ए मिनट, समझिएगा सेंटेंस क्या कह रहा है। यहाँ पर देखिए, टू गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रेडिकेट, यानी कि जो वर्ड ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, जो प्रेडिकेट के बारे में मोर इंफॉर्मेशन देगा। सिंपल है। यस, नेक्स्ट। सो इट मीन्स एली इज ऑब्जेक्ट। सो रन से लेकर एली तक प्रेडिकेट होगा, लेकिन एली यहां पर ऑब्जेक्ट होगा। ये भी हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं। यस, अभी जो इससे पहले बात हुई थी जेरेंट के बारे में, यहां पर मेंशन किया गया जेरेंट इज अ वर्ब। A gerund is a verb. Form that functions as a noun. एक जेरंड होगा जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनाया जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्लस आईएनजी। तो काम क्या करेगा, नाउन का करेगा। बिल्कुल सही है। लाइक ड्राइविंग इज जेरंड, जेरंड इज अ नाउन। स्विमिंग इज जेरंड और जेरंड इज अ नाउन। ये बनाया कैसे गया है, ये बनाया गया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, वी प्लस फर्स्ट फॉर्म, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। और नंबर 2 देखिएगा, यहाँ पर वर्ब दी गई है, राइट। ये वर्ब है, तो वर्ब से पहले हमेशा क्या आएगा माय डियर, वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्ट आएगा। और सब्जेक्ट में दो ही कंडीशन हो सकती हैं, या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। पी फॉर प्रोनाउन। मैं गारंटी से कह सकता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, आपके पूरे किसी भी सेंटेंस में, चाहे वो किसी भी न्यूज़पेपर में मेंशन किया गया हो, किसी भी सब्जेक्ट में दो ही पॉइंट मेंशन हो सकते हैं, दैट इज नाउन एंड प्रोनाउन। विदाउट नाउन और प्रोनाउन यू कांट कंप्लीट एनी सेंटेंस, एंड यू कांट जस्टिफाई एन एडजेक्टिव एज अ नाउन, एडजेक्टिव एज अ पार्ट ऑफ प्रोनाउन, as we have to need noun or pronoun to complete the sense of the verb। मीन्स सब्जेक्ट के पार्ट को कंप्लीट करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होते हैं नाउन और प्रोनाउन नाउन की, और प्रोनाउन और नाउन में से ही हमेशा सब्जेक्ट बनेगा। कभी भी एडजेक्टिव आपका नाउन और प्रोनाउन का प्लेस से नहीं ले सकता है, लेकिन नाउन किसी वर्ब, किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए यूज किया जा सकता है, लेकिन सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही होगा। नेक्स्ट, अब इसके साथ साथ मैंने बात की ऑब्जेक्ट के बारे में। अब ऑब्जेक्ट भी दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्ट, अभी मैंने आपको समझाया, मैं आपको समझा रहा हूँ कि मैं आपको टीच करता हूँ, एक यू है, इसको टीच करता हूँ आपको, और क्या टीच करता हूँ, इंग्लिश। अब जो टीच किया गया, जो टीच किया गया है, एक ऑब्जेक्ट ये है, और एक जिसको टीच किया गया एक ऑब्जेक्ट ये है। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या कह रही है, इसको समझिएगा। द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द सेंटेंस। रिसीव क्या करता है, वो एक्शन का को रिसीव करता है। यानी कि मैंने यूज किया टीच, ये टीच कौन करता है, रिसीव, इंग्लिश। टीच किया जा, इंग्लिश किया जा रहा है, और किसको किया जा रहा है, तो ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, सी इन द एग्जाम्पल, द मैन बिल्ड्स अ हाउस। बिल्ड क्या बिल्ड करता है, ये हाउस करता है। हाउस मीन्स ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कौन सा है, इसका नाम क्या होगा, डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा। अब बिल्ड क्या हुआ है, हाउस हुआ है, तो रिसीव द एक्शन ऑफ द सेंटेंस, तो इट मीन्स रिसीव कौन कर रहा है, हाउस कर रहा है, तो इसलिए हाउस इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इस हाउस के प्लेस पर यूज हुआ है इट, राइट। तो आप इसे क्या कहेंगे, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इनडायरेक्ट को भी। इनडायरेक्ट कहां पर गिवन है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ये दो टाइप गिवन हैं। जैसे आपने पहले समझा था सब्जेक्ट को, और फिर समझाया गया आपको प्रेडिकेट।
और प्रेडिकेट के अंदर मेंशन है ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट भी दो टाइप के हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। जो ऑब्जेक्ट रिसीव करता है उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोला जाएगा, और जो इंडिकेट करता है टू हुम, अब जैसे मैंने कहा आई टीच यू इंग्लिश, तो टीच किसे किया जा रहा है, यू को। टू हुम है ना, या फॉर हुम द एक्शन, तो इट मीन्स वो होगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। रिसीव करने वाला, रिसीव करने वाले को कहा जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और वो रिसीव करने वाला किसके लिए है, टू हुम या फॉर हुम द एक्शन ऑफ द सेंटेंस इज बीइंग डन, कि वो एक्शन वो जो टीच इंग्लिश की जा रही है वो किसके लिए की जा रही है, दैट इज इनडायरेक्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड क्लियरली। चलिए माय डियर, आफ्टर दैट देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, बिल्कुल इजी है। अब मैंने बोला था द मैन बिल्ड्स हिज फैमिली अ हाउस। अब जो आदमी है अपने मकान को फैमिली के लिए बनाता है, तो हाउस मीन्स डी फॉर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसके लिए बनाता है, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो आपको पहचान होनी चाहिए कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा। तो माय डियर, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए ये पार्ट्स बहुत ज़रूरी है, ये कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि आपको पता रहे कि सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या होगा, और ऑब्जेक्ट के टू पार्ट्स क्या होंगे। चलिए आफ्टर दैट नेक्स्ट देखते हैं। तो माय डियर, इन दी नेक्स्ट वीडियो I will bring the concept of subject complement, okay, and other parts of subject complement. So you have to wait for this, and you have to subscribe, share, and like the video. And with this you have to wait for my new video, and in the next video I will complete the sentence, I will complete the concept of subject, predicate, subject complement, and object, direct object or indirect object. So till then my dear, bye bye, see you soon.